عمران خان بتائیں ایکس وائی کون ہے اور وہ کن کو فون کر رہے ہیں؟ رہنما مسلم لیگ نون میاں جاوید لطیف کا چیئرمین پی ٹی آئی سے سوال، کہتے ہیں عمران خان تمام حدیں پھلانگ چکے، سوچے سمجھے منصوبے کے تحت اداروں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ عمران خان خود امپورٹڈ ہیں، ان کی سیاست ختم ہو چکی۔ سربراہ پی ڈی ایم مولانا فضل الرحمان کی میڈیا سے گفتگو، بولے عمران خان اداروں پر حملہ کر رہے ہیں، چیئرمین پی ٹی آئی کے خلاف کارروائی نہ ہونے پر حکومت سے خائف ہوں۔ خاتون جج اور پولیس افسران کو دھمکیاں دینے کا کیس، انسداد دہشت گردی عدالت میں عمران خان کے خلاف کیس کی سماعت۔ عمران خان کے وکیل بابر اوان نے دہشت گردی کی دفعات ختم کرنے سے متعلق ہائی کورٹ کا فیصلہ پڑھ کر سنایا۔ اقوام متحدہ جنرل اسمبلی اجلاس میں شرکت کے لیے وزیر اعظم شہباز شریف نیو یارک میں موجود۔ وزیر اعظم 23 ستمبر کو اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس سے خطاب کریں گے، موسمیاتی تبدیلی کے باعث درپیش مسائل کے حل کے لیے تجاویز دیں گے۔ بلاول بھٹو زرداری کی نیو یارک میں چین کے وزیر خارجہ سے ملاقات، باہمی شراکت داری اور دو طرفہ تعاون سمیت دیگر امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ بلاول بھٹو نے سیلاب میں پاکستان کی بھرپور حمایت اور مدد پر چین کا شکریہ ادا کیا۔ سیلاب نے بستیوں کی بستیاں اجاڑ دیں، متاثرہ علاقوں میں ہر جگہ صرف تباہی ہی تباہی ہے، لاکھوں گھر بہہ گئے، سڑکیں کھنڈر، کھڑی فصلیں نیست و نابود ہو گئیں، اکثر مقامات پر تاحال کئی فٹ پانی موجود، تعفن اور وبائی امراض سے متاثرین کی مشکلات میں اضافہ۔ سیکرٹری جنرل اقوام متحدہ نے سیلاب متاثرین کی مدد کے لیے دنیا سے اپیل کی۔ چیئرمین این ڈی اے میں اختر نواز کی نیوز کانفرنس بریفنگ میں کہا کہ سیلاب متاثرین میں تقسیم کیے گئے امدادی سامان کی پوری تفصیل کا ریکارڈ رکھا جا رہا ہے، سیلاب متاثرین کو مزید امداد کی ضرورت ہے۔ پاکستان کو تاریخ کے بہت بڑے سیلاب کا سامنا ہے، اب تک موسمیاتی تبدیلیوں سے اتنی بڑی تباہی نہیں ہوئی۔ وفاقی وزیر احسن اقبال کی پریس کانفرنس، بولے سیلاب متاثرین کی بحالی کے لیے اقدامات جاری ہیں، قوم سے سیلاب متاثرہ بھائیوں کی مدد کی اپیل ہے۔ جو سیلابی ریلے سے بچ گئے وہ وبائی ریلے میں پھنس گئے، سربراہ عوامی مسلم لیگ شیخ رشید کا ٹویٹ، کہتے ہیں سندھ میں پیپلز پارٹی کے وزراء کا استقبال جوتوں سے ہو رہا ہے، پی ڈی ایم ہی نہیں، نون اور پاکستان پیپلز پارٹی میں بھی رسہ کشی شروع ہو گئی۔ سیلاب متاثرین کی گالیاں سن کر نہیں، الیکشن کی خبر پر غصہ آتا ہے، وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی میڈیا سے گفتگو، کہتے ہیں سیلاب کی صورتحال میں الیکشن کی خبر سننے کا وقت ہی نہیں، ٹی وی پر الیکشن کی خبر آئے تو میں چینل بدل دیتا ہوں۔ عمران خان کی کال پر اوورسیز پاکستانیوں نے متاثرین سیلاب کے لیے دل کھول کر عطیات دیے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی کہتے ہیں عمران خان اوورسیز پاکستانیوں کی حقوق کی آواز ہیں، سیلاب متاثرین کے لیے امدادی سرگرمیاں جاری ہیں۔
سیلاب متاثرین کے لیے ہالی ووڈ کی معروف اداکارہ اینجلینا جولی ایک بار پھر پاکستان آئیں گی۔ انٹرنیشنل ریسکیو کمیٹی کے مطابق اینجلینا جولی متاثرہ علاقوں کا دورہ کر کے سیلاب متاثرین سے ملاقات کریں گی۔ کورونا وائرس کے کیسز میں کمی، پاکستان کورونا مریضوں کے حوالے سے مرتب کی گئی فہرست میں 53ویں نمبر پر، مثبت کیسز کی شرح 0.52% ریکارڈ، مریضوں کی مجموعی تعداد 15,71,936 ہو چکی۔ اور انتظار کی گھڑیاں ختم، پاکستان اور انگلینڈ کرکٹ ٹیمیں 17 سال بعد آج کراچی میں مد مقابل ہوں گی۔ میچ نیشنل اسٹیڈیم کراچی میں شام 7:30 بجے شروع ہوگا۔ کرکٹ شائقین گرین شرٹس کی جیت کے لیے پر امید۔ ویلکم بیک۔ بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کریں اور آپ کو بتائیں، عمران خان بتائیں ایکس وائی کون ہے اور وہ کن کو فون کر رہے ہیں؟ رہنما مسلم لیگ نون میاں جاوید لطیف کا چیئرمین پی ٹی آئی سے سوال۔ اسلام آباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے میاں جاوید لطیف بولے، پاکستان میں ان دنوں عجیب کھیل کھیلا جا رہا ہے، ملک میں پلاننگ سے فساد کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ عمران خان تمام حدیں پھلانگ چکے، سوچے سمجھے منصوبے کے تحت اداروں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ اور وہاں تو تمام میرے تجزیہ نگار، میرے سینئر پاکستانی، میرے انتہائی ذمہ داران لوگ جو ہیں، علماء اکرام جو ہیں، جماعتوں کے سربراہان جو ہیں، وہ بات کرتے ہیں کہ حد ہو گئی، عمران خان تمام حدیں پھلانگ گیا، اس نے انتہا کر دی اور اس پہ ہر ایک نوٹس لینے کا مطالبہ کرے، اور پھر مطالبہ پورا ہو نہ ہو وہ بھی سب کے سامنے ہے۔ جس طرح ایف آئی آر ہوتی ہیں اور اس کے بعد پھر انتہائی معزز محترم عدالتوں سے دہشت گردی کی دفعات جو ہیں وہ ختم ہوتی ہیں، اور پھر جس طرح توشہ خانہ اور دیگر کیسز جو ہیں وہ لٹکائے جا رہے ہیں، اور یہ خاص طور پر اس وقت ہوا جب ایک امریکن ممبر جو رات کے اندھیرے میں اس کو ملتی ہیں، اس کے بعد اس کا پاکستان کے اداروں میں بیٹھے لوگوں کے بارے میں انتہائی سخت۔ سربراہ پی ڈی ایم مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ عمران خان خود امپورٹڈ ہیں، ان کی سیاست ختم ہو چکی، یہ اداروں پر حملے کر رہے ہیں۔ چیئرمین پی ٹی آئی کے خلاف کارروائی نہ ہونے پر حکومت سے خائف ہوں۔ لاڑکانہ میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ آرمی چیف کو عمران خان نے متنازع بنانے کی کوشش کی، فوج، عدلیہ، پارلیمنٹ، الیکشن کمیشن سمیت ہر ادارے پر عمران خان حملے کر رہے ہیں۔ عمران خان اور ان کی سیاست ختم ہو چکی ہے، چاہے وہ چیخیں یا چلائیں، وہ ہم پر اثر انداز نہیں ہو سکتے۔ عمران خان بیرونی ایجنٹ ہیں، اس لیے اقوام متحدہ کو کارروائی پر تشویش ہوتی ہے۔ سربراہ پی ڈی ایم نے مزید کہا کہ پنجاب حکومت خود کمزور ہے، جو کچھ دنوں میں پلٹ جائے گی۔ جنس کے حوالے سے جو بل کی بات ہو رہی ہے وہ قرآن و سنت کے منافی ہیں۔ موجودہ بل میں ترامیم کے لیے جے یو آئی سے مشاورت کر رہی ہے، مکمل قرآن و سنت کے مطابق بل میں ترامیم کی جائیں گی۔ انسداد دہشت گردی کی عدالت میں خاتون جج زیبا چودھری اور پولیس افسران کو دھمکیاں دینے کے کیس میں عمران خان کے وکیل بابر اعوان نے دہشت گردی کی دفعات ختم کرنے سے متعلق ہائی کورٹ کا فیصلہ پڑھ کر سنایا۔ انسداد دہشت گردی عدالت نے پولیس پروسیکیوٹر کو طلب کر لیا
انسداد دہشت گردی کی عدالت اسلام آباد میں عمران خان کے خلاف خاتون جج زیبا چودھری پولیس افسران کو دھمکیاں دینے کے کیس کی سماعت ہوئی۔ بابر اعوان نے کہا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کے مطابق کیس سیشن جج کو منتقل کریں گے، جس پر جج راجہ جواد عباس حسن نے ریمارکس دیے کہ ہمارے پاس چالان جمع ہی نہیں کروایا گیا، آپ کو دوبارہ ضمانت کی درخواست دائر کرنی پڑے گی۔ نہ ہمارے پاس چالان جمع ہوا، نہ ہی گواہ کا بیان ہوا، نہ کچھ اور ہوا تو کیا منتقل کریں گے؟ ہمارے پاس اب تک ضمانت کا معاملہ تھا۔ جج نے ریمارکس دیے کہ ہائی کورٹ کے آرڈر کے بعد ہمارا دائرہ اختیار نہیں بنتا، ضمانت کی درخواست واپس لیں تو آپ کے لیے بہتر ہوگا۔ اسپیشل پروسیکیوٹر کہاں ہیں، ان سے بھی رائے لیتے ہیں۔ آمدن سے زائد اثاثہ جات اور منی لانڈرنگ ریفرنسز میں وزیراعظم شہباز شریف اور حمزہ شہباز کی حاضری سے استثناء کی درخواست احتساب عدالت نے منظور کر لی۔ احتساب عدالت لاہور میں دائر کی گئی درخواست میں موقف اختیار کیا گیا کہ وزیراعظم شہباز شریف بیرون ملک سرکاری دورے پر ہیں، اس لیے وہ عدالت میں پیش نہیں ہو سکتے۔ درخواست میں کہا گیا کہ حمزہ شہباز کی طبیعت ناساز ہے، جس کے باعث آج وہ پیش نہیں ہو سکتے۔ احتساب عدالت میں دائر کی گئی درخواست میں استدعا کی گئی کہ عدالت شہباز شریف اور حمزہ شہباز کی آج کی حاضری معافی کی درخواست منظور کرے۔ لاہور کی احتساب عدالت نے وزیراعظم شہباز شریف اور حمزہ شہباز کی حاضری سے استثناء کی درخواست منظور کرتے ہوئے کیس کی مزید سماعت 4 اکتوبر تک ملتوی کر دی۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے 77ویں اجلاس میں شرکت کرنے کے لیے وزیراعظم شہباز شریف نیو یارک میں موجود ہیں۔ وزارت خارجہ کے مطابق وزیراعظم 23 ستمبر کو اجلاس سے خطاب کریں گے۔ شہباز شریف موسمیاتی تبدیلی کے باعث درپیش مسائل کے حل کے لیے تجاویز دیں گے۔ مقبوضہ کشمیر کی صورتحال سمیت علاقائی اور عالمی مسائل پر پاکستان کا نقطہ نظر پیش کریں گے۔ اجلاس میں وزیراعظم مختلف ممالک کے ہم منصبوں اور UN سیکرٹری جنرل، سیکرٹری اور صدر سے بھی ملاقات کریں گے۔ دفتر خارجہ کے مطابق وزیر اعظم دورہ کے دوران بین الاقوامی میڈیا سے بھی بات کریں گے۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو بھی مختلف ملکوں کے وزرائے خارجہ سے ملاقاتیں کریں گے۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری کی نیو یارک میں چین کے وزیر خارجہ وانگ یی سے ملاقات۔ وزارت خارجہ کے مطابق ملاقات میں باہمی شراکت داری اور دو طرفہ تعاون سمیت دیگر امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو نے سیلاب میں پاکستان کی بھرپور حمایت اور مدد پر چین کا شکریہ ادا کیا۔ بلاول بھٹو نے ناروے کی وزیر خارجہ اور امریکی نمائندہ برائے خصوصی افغان مفاہمتی عمل ٹام ویسٹ سے بھی ملاقات کی۔ بلیٹن میں اب کچھ بات کریں ڈالر کی کہ ڈالر کی پرواز نہ رک سکی، روپیہ مزید کمزور جبکہ امریکی کرنسی کی قدر میں مزید اضافہ ہو گیا۔ انٹر بینک میں امریکی قدر میں مزید 1 روپے 9 پیسے کا اضافہ دیکھا گیا، جس کے بعد امریکی کرنسی 239 روپے پر ٹریڈ کر رہی ہے۔ واضح ہے کہ IMF قرض کی منظوری کے وقت ڈالر 220 روپے پر فروخت ہو رہا تھا۔ قرض کی منظوری سے اب تک انٹر بینک میں ڈالر 18 روپے سے بھی زائد مہنگا ہو چکا۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ ملک کی معیشت شدید مشکلات میں گھری ہوئی ہے۔ ڈالرز کی کمی اور درآمدی ادائیگیوں کے باعث ملک سے ڈالر تیزی سے ختم ہو رہے ہیں، جبکہ اربوں ڈالرز لانے کی حکومتی دعوے ابھی تک حقیقت کا روپ نہیں لا سکے۔ یہی وجہ ہے کہ ڈالر کی قدر میں ہر گزرتے دن کے ساتھ اضافہ ہونے لگا ہے۔ بلوچستان میں 24 گھنٹوں کے دوران سیلاب کے نتیجے میں ہونے والے حادثات میں مزید 1 شخص جاں بحق ہو گیا۔ اب تک جاں بحق ہونے والے افراد کی تعداد 300 ہو گئی۔ جاں بحق ہونے والوں میں سے 137 مرد، 73 خواتین اور 90 بچے شامل ہیں۔ سب سے زیادہ 40 ہلاکتیں کوئٹہ، جبکہ زوب سے 23 اور لسبیلا سے 21 اموات رپورٹ ہوئیں۔ صوبے میں بارشوں کے باعث مختلف حادثات میں 181 افراد زخمی ہوئے۔ سیلابی ریلوں اور بارشوں سے مجموعی طور پر بلوچستان میں 71,850 گھر متاثر ہوئے۔ 3,04,940 سے زائد مال مویشی سیلابی ریلوں کی نظر ہو گئے۔ سیکرٹری جنرل اقوام متحدہ نے سیلاب متاثرین کی مدد کے لیے دنیا سے اپیل کی۔ چیئرمین انڈیا میں لیفٹیننٹ جنرل اختر نواز کی نیوز کانفرنس بریفنگ میں کہا کہ سیلاب متاثرین میں تقسیم کیے گئے امدادی سامان کی پوری تفصیل ریکارڈ رکھا جا رہا ہے۔ سیلاب متاثرین کو مزید امداد کی ضرورت ہے۔ کمیونٹی کو
हालात की संगीनी और ज़रूरियात से आगाह किया, जिसके नतीजे में दोस्त ममालिक से रिलीफ का सामान आना शुरू हुआ। अब तक 20 ममालिक से 114 रिलीफ की फ़्लाइट्स आ चुकी हैं। इनमें से 66 फ़्लाइट्स का सामान नेशनल डिसास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने रिसीव किया। मज़ीद 13 फ़्लाइट्स अगले 10 दिनों में प्लान्ड हैं। 114 जो फ़्लाइट्स आई हैं उनमें से 48 फ़्लाइट्स ऐसी हैं जिनमें आने वाले रिलीफ का सामान मुतलका इदारे जैसे USAID, यूनिसेफ, UNHCR और रेड क्रिसेंट ने खुद मुतासरीन तक पहुंचाया। अब तक आने वाली 66 फ़्लाइट्स में से 13 फ़्लाइट्स तुर्किया से, 30 UAE से, 5 चाइना से, 4 ओमान से, 3 फ़्लाइट्स कतर से और एक फ़्लाइट दीगर ममालिक से सामान लेकर आई हैं। मैं ये भी बताता चलूँ कि इन फ़्लाइट्स में सब फ़्लाइट्स सामान नहीं लेकर आती, बल्कि कुछ फ़्लाइट्स ऐसी भी होती हैं जो सिर्फ डेलीगेशंस लेकर आती हैं या कुछ लॉजिस्टिक्स के इक्विपमेंट प्री डिप्लॉयमेंट के लिए लेकर आते हैं। इन फ़्लाइट्स में अभी तक आने वाले सामान में 16,938 टेंट्स, 3,000। पाकिस्तान को तारीख के बहुत बड़े सैलाब का सामना है। अब तक मौसमियाती तब्दीलियों से इतनी बड़ी तबाही नहीं हुई। वफाकी वज़ीर अहसन इकबाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले सैलाब मुतासरीन की बहाली के लिए इक़दाम जारी हैं। सैलाब से महफूज पाकिस्तानियों से अपील है कि सैलाब मुतासरा भाइयों का साथ दें। कि ये स्केल इतना बड़ा है कि शायद ये मुमकिन नहीं है किसी एक इदारे के लिए कि वो इस पर फौरी तौर पे पूरा उतर सके। इसलिए मैं समझता हूँ कि ये मुसीबत जितनी भी बड़ी है, पाकिस्तानी कौम की सलाहियत से बड़ी नहीं है। मैं आज अपील करना चाहता हूँ उस 2/3 पाकिस्तान से जिसको सैलाब ने नुकसान नहीं पहुँचाया। मैं आज अपील करना चाहता हूँ हर उस पाकिस्तानी से जिसका कारोबार मामूल के मुताबिक चल रहा है, जिसकी फसलें आज खेतों में लहा रही हैं। मैं हर उस पाकिस्तानी से अपील करना चाहता हूँ जो रात को अपने घर में बिस्तर के ऊपर पंखा चला के या एयर कंडीशनर चला के आराम से सोता है। मैं हर उस पाकिस्तानी से अपील करना चाहता हूँ कि जो सुबह सवेरे उठकर अपने बच्चों को हिफाजत के साथ तैयार करके स्कूल भेजता है और वो वहाँ से तालीम हासिल करके मामूल के मुताबिक वापस आते हैं। मैं हर उस पाकिस्तानी से अपील करना चाहता हूँ जो आज अपने साफ सुथरे माहौल के अंदर सेहतमंद ज़िंदगी गुजार रहा है। हमारे लाखों बहनें और भाई अपना घर छोड़ने पर मजबूर हैं क्योंकि उनके गांव को नहीं, उनके मोहल्ले को नहीं, बल्कि उनके पूरे ज़िले को सैलाब ने समुंदर में तब्दील कर दिया है। और आज वो सड़कों के ऊपर पनाह लेकर बैठे हैं, आज वो खैमों के अंदर पनाह लेकर बैठे हैं और उनके पास वो सब कुछ जो उन्होंने उम्र भर अपनी जमा पूंजी जमा किया था, जो कुछ उनका पूरे साल का फूड सिक्योरिटी के दाने थे या गंदम थी जिससे उन्होंने अपने बच्चों का पेट पालना था, और वो बीज जिससे उन्होंने अगली फसल में काश्तकारी करके आने वाले साल में अपने लिए फूड सिक्योरिटी का बंदोबस्त करना था, वो सब कुछ सैलाब की नज़र हो गया है। आज उन कैंप्स के अंदर और इन डिस्प्लेस्ड हमारे बहनों और भाइयों के जो पनाहगाहें हैं, उसमें जब आप अपनी उन बेटियों और बहनों को। वफाकी वज़ीर दाखिला और सरबराह अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद अहमद ने कहा कि लंदन में शहबाज शरीफ की नहीं सुनी गई और उसे ग्रिल किया गया। PDM ही नहीं, नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में भी रस्साकशी शुरू हो गई है। समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर अपने एक पैगाम में शेख रशीद अहमद ने कहा कि जो सैलाबी रेले से बच गए हैं वो वबाई रेले में फंसे हुए हैं। सिंध में पीपल्स पार्टी के वज़रा का जूतों से इस्तकबाल हो रहा है। सरबराह अवामी मुस्लिम लीग ने कहा कि बाहर से इमदाद आई ना अंदर से पेशरफ्त हुई। इमरान खान एक बहाना था, असल में अपने केसेस ख़त्म करवाए गए। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का कहना है कि मुतासरीन सैलाब की गालियाँ सुनकर नहीं, इलेक्शन की खबर पर गुस्सा आता है।
میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ صوبے میں سیلاب کی صورتحال میں الیکشن کی خبر سننے کا بھی وقت نہیں. سیلاب کی صورتحال میں ٹی وی پر الیکشن کی خبر آئے تو میں چینل بدل دیتا ہوں. وزیر اعلیٰ سندھ نے کہا کہ سندھ میں 30 میں سے 24 اضلاع سیلاب سے متاثر ہوئے. کراچی میں اوسط بارش سے زیادہ بارشیں ہوئیں. بارشوں سے کراچی کے انفراسٹرکچر کو بھی نقصان پہنچا. ان کا کہنا ہے کہ پنڈ ایدن میں 1800 ملی میٹر بارش ہوئی. ان اضلاع میں 30 لاکھ سے زائد کچے مکانات ہیں. ہم نے 30 لاکھ گھرانوں کے لیے چھت کا بندوبست کرنا ہے. ہمیں فوری طور پر 1.5 ملین خیموں کی ضرورت ہے. وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے کہا کہ سیلاب کے باعث پانی کا بہاؤ اتنا تیز تھا کہ کوئی شخص کچھ بھی نہیں بچا سکتا تھا. لوگ کوششیں کرتے تھے کہ پانی ان کی طرف نہ آئے مگر پانی کسی امیر اور غریب کو نہیں دیکھتا. انہوں نے کہا کہ وبائی امراض سیلاب سے بڑا ایشو ہیں. 504 کیمپس پورے سندھ میں لگائے ہوئے ہیں جن میں ڈاکٹرز اور پیرامیڈیکل سٹاف کام کر رہا ہے. متاثرین کو دوائیں فراہم کرنے کی بھرپور کوشش کر رہے ہیں. واپس آتے ہیں ایک شارٹ بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. آپ کو بتائیں ہالی ووڈ اداکارہ اقوام متحدہ کی ادارہ برائے پناہ گزین کی خصوصی سفیر اینجلینا جولی ایک بار پھر پاکستان آئیں گی. اینجلینا جولی تباہ کن سیلاب سے متاثرہ افراد کی مدد کے لیے پاکستان کا دورہ کریں گی. تاہم ان کے پاکستان آنے کی تاریخ کا اعلان نہیں کیا گیا. انٹرنیشنل ریسکیو کمیٹی کی جانب سے جاری کیے گئے بیان کے مطابق اینجلینا جولی سیلاب سے متاثرہ علاقوں کا دورہ کے دوران متاثرہ افراد سے ملاقات کریں گی اور مستقبل میں ایسے مسائل کو روکنے کے حوالے سے اقدامات پر گفتگو کریں گی. IRSC کا کہنا ہے کہ اینجلینا جولی اپنے دورے کے دوران اس بات کا مشاہدہ کریں گی کہ پاکستان جیسے ممالک موسمیاتی تبدیلیوں کے اس بحران کی سب سے بڑی قیمت کس طرح ادا کر رہے ہیں جس کے ذمہ دار وہ بھی نہیں ہیں. اینجلینا جولی اس سے قبل 2010 کے سیلاب اور 2005 کے زلزلے کے متاثرین سے ملاقات کے لیے پاکستان آ چکی ہیں. اسلام آباد میں ڈینگی بے قابو ہو گیا. گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران مزید 68 کیسز رپورٹ ہوئے. اب تک شہر میں 5 افراد ڈینگی کا شکار ہو کر جان کی بازی ہار گئے. گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران دیہی علاقوں میں 35 اور شہری علاقوں میں 33 کیسز رپورٹ ہوئے. ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر کے مطابق رواں سیزن میں 1456 ڈینگی کیسز سامنے آ چکے ہیں. رواں سیزن میں ڈینگی علاقوں میں 891 اور شہری علاقوں میں 865 ڈینگی کیسز رپورٹ ہوئے. 24 گھنٹوں کے دوران پیمز اسپتال میں 13، پولی کلینک میں 3 مریض داخل ہوئے. 24 گھنٹوں میں نجی لیبارٹریز میں ڈینگی کے 28 کیسز رپورٹ ہوئے. پاکستان میں کرونا وائرس کے کیسز میں کمی. ملک کرونا مریضوں کے حوالے سے مرتب کی گئی فہرست میں 53ویں نمبر پر پہنچ گیا. گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کرونا کیسز کی شرح 0.52% ریکارڈ کی گئی. پاکستان میں مزید 42 افراد میں کرونا وائرس کی تصدیق ہوئی. کرونا وائرس کے زیر علاج مریضوں میں سے 73 کی حالت تشویشناک ہے. پاکستان بھر میں اب تک 30,607 کرونا کے مریض انتقال کر چکے ہیں. لاہور میں فلورز ملز نے سرکاری سستے آٹے کا 20 کلو والا تھیلا 330 روپے مہنگا کر دیا. فلورز ملز مالکان نے سرکاری سبسیڈائز 20 کلو آٹے کا تھیلا 290 روپے سے بڑھا کر 1310 روپے کا کر دیا. ان کا کہنا ہے کہ سرکاری گندم کی قیمت پہلے 1765 روپے تھی جسے بڑھا کر 2300 روپے فی من کر دیا گیا. فلورز ملز مالکان کا کہنا ہے کہ سرکاری گندم کی قیمت بڑھنے پر انہوں نے آٹے کی نئی قیمت مقرر کی ہے جس کا اطلاق 21 ستمبر سے ہوگا. دوسری جانب نان بائی ایسوسی ایشن کا کہنا ہے کہ فائن آٹے اور میدے کی قیمت کم نہ کی گئی تو روٹی 20 روپے اور نان 30 روپے کا کر دیا جائے گا. کے الیکٹرک نے نیپرا میں ماہانہ فیول ایڈجسٹمنٹ کی مد میں 4 روپے 21 پیسے کمی کی درخواست کر دی ہے. نیپرا اتھارٹی 29 ستمبر کو کے الیکٹرک کی درخواست پر سماعت کرے گا. کے الیکٹرک نے اگست کے مہینے میں فیول ایڈجسٹمنٹ میں 4 روپے 21 پیسے کی کمی کی درخواست کر دی ہے. قبل ازیں وزیر توانائی خرم دستگیر نے اپنے بیان میں کہا تھا کہ 300 یونٹ تک کے بجلی کے بلوں میں
फ्यूल एडजस्टमेंट को माफ़ नहीं बल्कि मौखर किया जाएगा, जिसे अक्टूबर से मार्च के दरमियान वसूल किया जाएगा। खुर्रम दस्तगीर ने कहा कि हम सोलर, कोल और पानी से बिजली पैदा करने के मंसूबों को जल्द मुकम्मल करना चाहते हैं, जिससे बिजली की कीमत कम होगी। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही से कैनेडियन नैयाद पाकिस्तानी आमिर खान की क़यादत में ओवरसीज़ पाकिस्तानी वफद की मुलाकात। आमिर खान ने सैलाब के मुतासरीन के लिए वज़ीर आला को 1.5 करोड़ रुपए का चेक दिया। वफद में फ़ारूक रशीद, ज़फ़र चौधरी, सुहेल अंजुम और शहजाद खान शामिल थे। इस मौके पर प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू वज़ीर आला पंजाब मोहम्मद खान भट्टी भी मौजूद थे। वफद ने फ्लड रिलीफ के लिए वज़ीर आला परवेज़ इलाही के इक़दामात को सराहा। आमिर खान बोले, वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही ने सबसे पहले सैलाब से मुतासरा इलाकों में पहुँच कर काबिल तक़लीद मिसाल कायम की। चौधरी परवेज़ इलाही का कहना था कि सैलाब मुतासरीन की बहाली और रिलीफ हमारी तरजीहात में अव्वलीन है। सैलाब मुतासरीन को बरवक्त रेस्क्यू और रिलीफ का काम तेज़ी से जारी है। इमरान खान की कॉल पर ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने सैलाब मुतासरीन के लिए दिल खोल कर एहतियात दिए। इमरान खान और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के हकूक़ की तवाना आवाज़ हैं। तहसील फरीदाबाद के गांव फजल मोहम्मद खोसा के लोग बेयारो मददगार खुले आसमान तले बैठने पर मजबूर हैं। हुकूमती इमदाद ना मिलने पर शदीद मायूसी का शिकार हैं। मज़ीद जानते हैं वहां पर मौजूद हमारे ब्यूरो चीफ अता मोहम्मद खोसा से। जी अता मोहम्मद, अपडेट कीजिएगा। नाज़रीन को बताता चलूं, जिस तरह सैलाब की तबाहकारियां तहसील फरीदाबाद के गांव फजल मोहम्मद खोसा जो तकरीबन 20 दिन गुजर गए हैं, उनके रास्ते तकरीबन कटे हुए हैं। तमाम इलाकों के जो गांव से आने वाला रास्ता, वहां पर 3 शगाफ हैं, जिसके बिना पर इन जो तो मुकम्मल तौर पर यहाँ पर 2000 लोग यहाँ पर मुकीम हैं। उनका रास्ता मुकम्मल तौर पर कटा हुआ है, वो कहीं पे नहीं जा सकते। मलेरिया, टाइफाइड और गैस्ट्रोल बीमारियां हद से ज्यादा बढ़ चुकी हैं। हुकूमत को चाहिए था कि यहाँ कैंप लगाया जाता ताकि ये मुतासरीन है, सैलाब मुतासरीन है, मुश्किलात में हैं, उनको सैलाब को आए हुए 20 दिन का ज़ायदा दिन गुजर चुका है। यहाँ ना टेंट दिए गए हैं, ना इनको राशन दिया गया है। तो वजह इसकी यही है कि उनका रास्ता मुकम्मल तौर पर कटा हुआ है, क्योंकि इंतजामिया का यहाँ इस गाँव में कोई भी एहलकार ना पहुँच सका। मुश्किलात में है और अजियत से दो चार है। आइए इलाके के फसल सारे तबाह हो चुके हैं, ज़राअत हमारा तबाह हो चुका है। में पड़े हुए, मलेरिया में पड़े हुए, एक बच्ची फौत हो गई मलेरिया में। कुछ भी हमें कुछ भी नहीं मिले। अब एक तो बात दूसरी है, रास्ता भी नहीं। अख्तियार खान गोट से जो गुलाम हैदर के रास्ते थे आते हैं, वहाँ पर 2 कट लगे हुए। हमने बहुत कोशिश की। कोट गुलाम मोहम्मद खान के नवाही गांव से बारिश का पानी ना निकाला जा सका। राशन समेत दीगर अशिया ज़रूरिया कवी फुकदान। इलाका मकीन सरापा एहतजाज हैं। मज़ीद जानते हैं वहाँ पर मौजूद हमारे नुमाइंदे नवीद कोरचानी से। जी नवीद, अपडेट कीजिएगा। तहसील कोट गुलाम मोहम्मद के नवाई गांव खेमची कोली में यूसी गुलाम मुस्तफा भुरगरी, यहाँ पर जो बारिश का पानी अभी तक 5 से 6 फुट पानी खड़ा है और यहाँ का जो गांव है मुकम्मल तौर डूबा हुआ है। अभी तक कोई भी हद का MNA या MPA यहाँ पर जो है नोटिस नहीं लिया है। इसी हवाले से जो गांव वालों ने एहतिजाजी मुजाहरा किया है। आइए तफसील लेते हैं उन लोगों का क्या कहना है। मैं ये खेमसी कुली श्री गोठ में ॻाल्हाए रहियो आहियां, जेको असां तक़रीबन 2 महीना थी विया आहे, सभा बेरोज़गार थी वेठा आहियूं। एतिरो को बरसाति पई आहे, तमामु घणी पई आहे। हींअर ताईं पाणी तक़रीबन 5 फुट 6 फुट बीठल आहे हिन ॻोठ में, ऐं घर हिकिड़ो बि असांजो सही कोन बचियलु आहे। जेको आहे किरी विया आहिनि, ऐं माना अहिड़ी हालति जदीद आहे। असां 200-300 रुपया कमाइण वारा माण्हू हींअर बेरोज़गार थी वेठा आहियूं। असां वटि को माना न को MLA या चूंडल नुमाइंदा या को बि सरमाईंदड़ हिते असां वटि न को ख़बरचार वठण आयो आहे, न को असांखे राशन पाणी या तंबू वग़ैरह या का बि सहूलियत असां ताईं अञा न पुॼी आहे। असां उन्हनि खे इहो चवणु चाहियूं था त असां हींअर मजबूरी में आहियूं, ॾुखियाणी में आहियूं। जेकॾहिं असां इन्हनि जा वोटर आहियूं, असांखे असांजी हींअर जेकॾहिं ख़बर कोन वठंदा त पोइ असां पोइ अल्लाह मालिक ईअं थींदो जीअं बातें सुनी। इन्होंने हद के MNA भी मुनवर खान तालपुर और हद के MPA नूरामत भुरगरी से गुजारिश की है कि आप आओ गाँव का विजिट। ठहरी मीरवाह के नवाही गांव जमो खान शहर की मकीन परेशान हैं। राशन समेत दीगर अशिया ज़रूरिया के फुकदान पर मुतासरीन सरापा एहतजाज बन गए।
मज़ीद जानते हैं वहाँ पर मौजूद हमारे नुमाइंदे गुलाम शबीर खासखैली से। जी गुलाम शबीर, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ ठहरी मिरवा के गांव गोश जम्मू खान शहर में मौजूद हूँ। यहाँ पर हालिया बारिशों की वजह से ये जो गांव है ये बिल्कुल मुतासर हो चुका है, लेकिन इंतजामिया की जानिब से ना इनको राशन दिया गया है, ना इनको कोई टेंट दिया गया है। मुतासरीन सरापा एहतजाज है। मजीद उनसे बात करते हैं कि उनका क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम। मां को टीवी वारनि जो थोरा तो आहियां जेके असांजे ॻोठ में कीअं असांजा कैमरा वीडियोस घरनि जा बताता हूं। ऐं असांखे बिल्कुलु ॻोठ जम्मू शहर में बिल्कुलु असांखे का बि राशन जो ज़रो बि न मिलियो आहे। ग़रीब माण्हुनि खे, मिस्किन माण्हुनि खे, जिन खे ॿनी ॿार न आहिनि, जा घर रही चुका आहिनि, का शे न मिली है, न दवा। आला हुकूमत से अपील करता हूँ, हमारा गांव मुकम्मल तबाह हो गया है, हमारे माल मवेशी ख़त्म हो चुके हैं, हमारा अनाज नहीं है, हम बेयारो मददगार हैं। यहाँ हमारी कोई मदद नहीं करता है, ना हमारा यहाँ का MP है, ना यहाँ का MNA, न यहाँ की इंतज़ामिया, सारे गुम हो गए हैं। अपने मनपसंद लोगों को राशन दे रहे हैं, यहाँ पे कोई राशन नहीं मिल रहा है। हम भूख से तड़प रहे हैं, मलेरिया हो गई है, यहाँ बीमारियां उभर आ रही हैं, पता नहीं। ये आला ऑफिसरन के, वज़ीर आला सिंध के, वज़ीर आज़म के पर ख़ुसूस असांजी अपील है त जीअं त हेॾा बरसातियूं पियूं आहिनि, उन खां पोइ घर माण्हुनि जा की पिया आहिनि, को बि जेको राशन या का बि इंतज़ाम असांखे का बि या MP MNA या हद जे को बि आला अमलदार असां हिम्मत लड़ी न आयो आहे। जेकॾहिं को बि राशन या का इंतज़ाम का शइ अहिड़ी माली मदद कई वञे थी, उहो बि राति जे अंदरि जी माली मदद कई वञे पई, उहे भी जेकॾहिं कयो थो वञे कि वॾेरे सरमा। जी जैसे कि आपने मुतासरीन की बातें सुनी, उन्होंने कहा कि हालिया बारिशों की वजह से जो हमारे मकान थे वो भी बिल्कुल टूट गए। इलाहाबाद में भी डेंगू के वार जारी हैं। मजीद 9 अफराद में डेंगू वायरस में मुब्तला हो गए। मजीद जानते हैं वहाँ पर मौजूद हमारे नुमाइंदे अरशद सावल से। जी अरशद, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल जी, मुल्क भर की तरह इलाहाबाद में भी डेंगू की वबा फूट चुकी है, जिसमें काफ़ी जो शहरी हैं वो बीमार हो चुके हैं। इसी हवाले से मेरे साथ एक शहरी मौजूद है, उनसे जानते हैं कि वो इस हवाले से क्या मजीद बताएंगे हमें। जी बहुत शुक्रिया आपके चैनल कोहिनूर का, जिन्होंने ये अहम मसला उजागर किया और उजागर करने के लिए यहाँ पे आए हैं अस्पताल में। मेरी तहसील इंतज़ामिया से ये रिक्वेस्ट है कि जो THQ अस्पताल चुनिया है वो 9 लाख आबादी को डील कर रहा है। खुदारा कुछ होश के नाखुन लें। ये गुज़श्ता 2 दिनों में 9 केस रिपोर्ट हो चुके हैं, 4 बेड लगाए गए हैं। बाकी जो 5 मरीज़ हैं उनको लाहौर और कसूर की तरफ रेफ़र किया जा रहा है। उनको गरीब लोग हैं, उनको सफ़र करना पड़ता है, वहाँ पे जाके जो इलाज है वो कराना पड़ता है। मेरी CO महकमा सेहत से ये अपील है कि हमारा शहर इलाहाबाद बहुत बड़ा शहर है, 3 लाख आबादी है। उसके अलावा जो है वो कंगनपुर है, छांगा मांगा है, वहाँ पे जो बड़े बड़े अस्पताल बनाए गए हैं, मॉडल बनाए गए हैं, इनमें आप बेड लगा दें ताकि जो इस शहर की आबादी है वो कहीं दूर ना जाए, यहीं से अपना इलाज करवाए। जी जैसा कि आपने शहरी की बात सुनी, उन्होंने तहसील इंतज़ामिया से दरख्वास्त की है कि जो बेडों की तादाद है उनको बढ़ाया। वापस आते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आपको बताएं, बारिशों और सैलाब के बायस लकी मरवत में वबाई अमराज फूट पड़े, लोग मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला होने लगे। मज़ीद जानते हैं वहाँ पर मौजूद हमारे नुमाइंदे शरीफुल्लाह खान से। जी शरीफुल्लाह, अपडेट कीजिएगा। जी सैलाब तो गुजर गए, लेकिन अपने पीछे लतादाद बीमारियाँ छोड़ गया। इन बीमारियों में एक बीमारी मलेरिया की है, जिसने एक वबा की शक्ल इख्तियार कर ली है। महकमे सेहत मलेरिया प्रोग्राम इंचार्ज के मुताबिक पिछले 15 दिनों में लकी मरवत में 1525 मुस्बत केसेस सामने आ चुके हैं। इस वक्त मैं सिटी हस्पताल लकी मरवत में मौजूद हूँ। सिटी हस्पताल के MS डॉक्टर इश्तियाक अहमद ने मरीज़ों की सहूलियात के लिए इस अस्पताल में सेकंड टाइम भी मलेरिया टेस्ट की सहूलियत मुहैया कर दी है। इस वक्त सिटी हस्पताल में मलेरिया के मरीज़ों का बहुत ज़्यादा रश है। सिर्फ सिटी हस्पताल में पिछले 15 दिनों में मलेरिया की 542 मुस्बत केसेस सामने आ चुके हैं।
मलेरिया के सुपरवाइजर के मुताबिक वो इलाके मलेरिया से सबसे ज़्यादा मुतासर हैं जहां सैलाब आ चुका है। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर अब्दुल वजीर का कहना है कि महकमा सेहत की टीमें मुतासरा इलाकों में मौजूद हैं, वहां पर फोक स्प्रे भी किया जा चुका है, फ्री मेडिकल कैंप्स भी लगाई गई हैं। एंटी नारकोटिक्स फोर्स के इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर कार्रवाई। 110 अदद चर्च से भरे कैप्सूल बरामद कर लिए गए। बरामद शुदा कैप्सूल्स का मजमूई वजन 636 ग्राम है। मुलजिम खैबर एजेंसी का रिहायशी है और इस्लामाबाद से बहरीन जा रहा था, जबकि दूसरी कार्रवाई में कराची में वाक़े कोरियर ऑफिस में कनाडा के लिए बुक किए गए पार्सल से हेरोइन बरामद कर ली गई। मुलजिमान के खिलाफ इंसदाद मंशियात एक्ट के तहत मुकदमात भी दर्ज कर लिए गए। हैदराबाद में आटे की बढ़ती हुई कीमतों ने शहरियों को मजीद मुश्किलात में मुब्तला कर दिया। फी किलो आटा 120 रुपए में फ़रोख्त होने लगा। मजीद जानते हैं हैदराबाद में मौजूद हमारे ब्यूरो चीफ शेख दानिश से। जी दानिश, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, हुकूमत वक्त ने जो रोटी कपड़ा मकान के दावेदार जो हुकूमत थी, इसने 2 वक्त की रोटी खाने से भी गरीब आवाम को महरूम कर दिया है। हैदराबाद में सस्ता आटा फराम करना और ज़िला इंतज़ामिया और हुकूमत बिल्कुल नाकाम हो चुकी है। हैदराबाद में आटे की फ़ी किलो कीमत तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई है। आटे की फ़ी किलो कीमत 117 रुपये से लेके 120 रुपये तक फ़रोख्त किया जा रहा है। ज़िला इंतज़ामिया और आवाम की यहाँ पर जो हैदराबाद की शिकायतें हैं आवाम की, वो उनकी बड़ी मुश्किलें और मज़ीद बढ़ गई हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं लतीफ़ाबाद 12 नंबर के इलाके में। यहाँ के कुछ इलाका मकीन और शहरी मौजूद हैं। आइए इनसे हम बात कराते हैं, इनका इस बारे में क्या कहना है। सर, ये आटा लेने के लिए आए, 120 रुपये किलो आटा है। ये हुकूमत क्या कर रही है? सो गई है मेरे ख्याल में, तो मुझे लग रहा है किसी काम की भी नहीं है। नाहिल हुकूमतें आ गई हैं। ये क्या कहते हैं, आटा 120 रुपये किलो, रोटी कपड़ा मकान ये देने का वादा करा था। क्या कर रही है आवाम के साथ? सैलाब में डूबी पड़ी हुई है आवाम, पानी नाली कीचड़ बीमार लगी पड़ी हुई है हर तरीके से। रोटी खाने से भी बेजार हो गए हैं। क्या चोरियां करें हम? क्या चोरी करके खाएं, हराम करें, कुछ डाका मारें? गरीब आदमी किधर से खाए जो 500-600 रुपये कमाने वाला है? उसका तो एक टाइम का रोटी में पूरा हो जाता है। फिर गैस के बिल, बिजली के बिल, ये वो दुनिया की 10 पटी है, ये कहाँ से पूरी करी जाए? क्या कर रही है सिंध हुकूमत, क्या कर रही है? इनको चाहिए आटा, दाल, घी, चीनी, पत्ती, ये चीज घर के इस्तेमाल के, इनके घर के आइटमों पे पैसे कम होने चाहिए। आटा इतना महंगा हो गया, गरीब आदमी कहाँ जाए ये बताओ? या तो खुदकशी कर ले या मर जाए। ये आपने इलाका मकीन की बात सुनी, इनका यही कहना है 120 रुपये किलो आटा। ये जो हुकूमत आई थी, रोटी कपड़ा मकान के दावेदार जो ये हुकूमत है ज़िला इंतज़ामिया हैदराबाद की, इन्होंने बड़े बुलंद दावे किए थे और आज ये वक्त है। शरकपुर शरीफ और गिरदनवाह में सुई गैस की बंदिश, इलाका मकीन सरापा एहतजाज बन गए। मजीद जानते हैं वहाँ पर मौजूद हमारे नुमाइंदे फजल कयूम खान से। जी फजल कयूम, अपडेट कीजिएगा। जी मैं इस वक्त मौजूद हूँ पुरानी सब्ज़ी मंडी शरकपुर में। शरकपुर में गैस की शदीद किल्लत की वजह से अवाम सरापा एहतजाज हैं। सुबह के वक्त बच्चे स्कूलों में बग़ैर नाश्ते से जाते हैं और दफातर में जाने वाले अफराद भी बग़ैर नाश्ता किए जाके लोग बाजारी खाने खा के उकता चुके हैं। शरकपुर में गैस का बहरान इतना शदीद हो चुका है, आइए जानते हैं शहरियों से। जी आप ठीक फरमा रहे हैं, गैस का बहरान शरकपुर में बहुत शदीद है, जिसकी वजह से हमारे बच्चे भी स्कूलों में मतलब बगैर नाश्ते के बाज़ जाना पड़ता है क्योंकि सुबह गैस ही नहीं आ रही होती। और एलपीजी का भी बहरान है, यहाँ पर बहुत महंगी होने की वजह से एलपीजी भी नहीं मिलती है, बाज़ दुकानें सील कर दी जाती हैं। हम बहुत मुश्किल में इस वक्त अपनी लाइफ जो है ना गुजार रहे हैं, क्योंकि गैस एक बुनियादी ज़रूरत है। अगर गैस नहीं होगी तो हम कैसे मतलब घर के जो लोग हैं खाना पकाएंगे, कैसे हमको देंगे, बच्चों को देंगे? बहुत मुश्किल हो रही है इस वक्त। गवर्नमेंट को चाहिए, हमारे यहाँ पर जो लोग हैं जो मतलब कह लें कि अथॉरिटीज़ हैं, उनको चाहिए कि इस तरफ कुछ गौर करें ताकि इन सारे मामलात का हल किया जा सके और आवाम को कुछ सुख का सांस आए। सुबह 5 बजे से गैस बंद कर दी जाती है और तकरीबन नाश्ते का भी बगैर नाश्ते के ये तमाम लोग उधर। आरिफ वाला के गवर्नमेंट हाई स्कूल के तलबा की बोर्ड इम्तिहानात में नुमायाँ कारकर्दगी। फरहान जावेद नामी तालिब इल्म ने ज़िला भर में अव्वल पोजीशन हासिल कर ली। मज़ीद जानते हैं वहाँ पर मौजूद हमारे नुमाइंदे रज़ा ज़ैदी से। जी रज़ा, अपडेट कीजिएगा। जी हम इस वक्त मौजूद हैं गवर्नमेंट हाई स्कूल एन ब्लॉक आरिफ वाला में,
जहां के बच्चे ने 9th क्लास में 499 नंबर हासिल करके इस दौड़ में कामयाबी हासिल की है, जो पूरे डिस्ट्रिक्ट पाकपतन में फर्स्ट आया है। हम जानते हैं उस बच्चे से कि उसने ये मेहनत किस तरह की है, कौन कौन इसमें शामिल है। इसमें अस्सलाम वालेकुम, इसमें मेरे तमाम असातिज़ा कराम, राना मुजफ्फर इकबाल साहब और दीगर असातिज़ा कराम की मेहनत शामिल है, और मेरी ये माँ बाप की दुआओं का ये सिला है कि मुझे अल्लाह ताला ने इतनी इज्जत से नवाजा। जी, हमारे साथ स्कूल के प्रिंसिपल भी मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि वो भी इसके बारे में कुछ बताएं। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा स्कूल अल्लाह का शुक्र है कि फैज़ान जावेद साइंस टीचर और राना मुजफ्फर साहब की क्लास का बच्चा जो है, ये इस बच्चे ने 499 नंबर लेके डिस्ट्रिक्ट, ना सिर्फ डिस्ट्रिक्ट पाकपतन बल्कि साहिवाल बोर्ड में पहली पोजीशन। आपको अहम खबर से आगाह करें कि कनाडा में खालिस्तान रेफरेंडम के हवाले से तारीख रकम हो गई। 1,10,000 सिखों ने वोट डाले। खालिस्तान के आज़ाद होते ही शिमला को दारुल हुकूमत बनाने का फैसला। रेफरेंडम में गैर मामूली तादाद में सिखों की शिरकत पर सिख फॉर जस्टिस का इजहार तशख्खुस। कनाडा के शहर में लगभग 1 लाख वोटर जिहड़े ने आके वोटां पा गए ने, ते हुण इस तो यह साबित हो गया वा कि बहुत भारी गिनती विच सिख पंजाब नूं आज़ाद करना चाहुंदे आ, जिहड़ा कि हिंदुस्तान के कब्जे च आ, क्योंकि पंजाबी चाहुंदे ने साडा अपना राज जिहड़ा वा होना चाहिए वा, पंजाब एक आज़ाद देश बनना चाहिए। ते इह अज इन्हां ने सानूं सबूत दे के चले गए ने भी असीं इन्नी भारी गिनती च आए आ, ये साडा हक बनदा। देखो अज कैनेडा दे विच जिस तरीके नाल रिकॉर्ड तोड़ इकट्ठ होया आ, इन्हें दस दिता। ईवन कैनेडा दी गवर्नमेंट जिहड़ी है उन्होंने भी स्टेटमेंट जी इशू कर दी है, तो उन्होंने भी कहा कि असी जो इन्हों का हक है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रैशन जी है सारिਆਂ ਨੂੰ होनी चाहिए। उस तहत जो खालिस्तान रेफरेंडम हो रहा है, इन्होंने लोगों को रेफरेंडम करवाने का पूरा हक है। और खास तौर पर कैनेडियन गवर्नमेंट का ये जो सिखा प्रति नरम रवैया कह लो या रेफरेंडम के, मैं तो इन्हू समझूंगा इनडायरैक्ट एक किस्म की रेफरेंडम के हक में भुगते। देखो जी, सिखा ने 1947 भारत के नाल रहना पसंद किया संधि के तहत, पर ਜਿਹੜੇ वादे नेहरू ਤੇ गांधी ने ਕੀਤੇ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮੁੱਕਰ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬੇ ਦੇ 3 ਟੋਟੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਸਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੂੰ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਡੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ 110 ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ। ਸੋ ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਗਣਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਵਾਂ ਵੀ ਸਿੱਖ ਅਲੱਗ ਕਿਉਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਾਂ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰੀ ਚੱਲੀਏ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਆ ਵੀ ਹੁਣ ਨੋ ਮੋਰ ਆ, ਹੁਣ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, वो अपना वखरा देश चाहते हैं। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਭਾਜੀ ਨੌਜਵਾਨ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕਹਾਣੀ ਆ, ਜੋ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ 90s ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ। रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मोहम्मद अशरफ खान को फाइनेंस सेक्रेटरी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लाहौर डिवीज़न की जिम्मेदारी सौंप दी गई। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सेंट्रल पंजाब के सदर राजा परवेज़ अशरफ की जानिब से नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पंजाब सैयद हसन मुर्तज़ा का कहना है कि उम्मीद है मोहम्मद अशरफ खान अपनी जिम्मेदारियां अहसन तरीके से अंजाम देते हुए पार्टी कारकुनान के साथ रवाबित को मज़ीद वसअत देंगे। यहाँ पर लेंगे एक शॉर्ट ब्रेक, हमारे साथ रहिए। आपको बताएं, एसपी इन्वेस्टिगेशन मॉडल टाउन लाहौर सुहेब नसरुल्लाह रांझा की मीडिया नुमाइंदों से गुफ्तगू, एसडीपीओस और इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन समेत दीगर अफसरान की शिरकत। इन्वेस्टिगेशन पुलिस मॉडल टाउन डिवीज़न की रवां साल की अब तक की कार्रवाइयों पर ब्रीफिंग ली। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं हमारे चीफ क्राइम रिपोर्टर वसीम साबिर से। जी वसीम, अपडेट कीजिएगा। देखिए, आज एसपी इन्वेस्टिगेशन मॉडल टाउन सुहेब नसरुल्लाह रांझा अपने दफ्तर में मीडिया के नुमाइंदों से गुफ्तगू करते हुए बताया कि रवा साल जो है उसमें जो कारकर्दगियाँ की गई हैं, तकरीबन 12,874 मुलजमान गिरफ्तार किए गए, जिनके कब्जा से 8,379 जो है मुकदमात चलान करके अदालतों में पेश किए गए। और इसी तरह से गिरफ्तार मुलजमान से 19 करोड़ रुपए से जायद का माल मसरूका बरामद किया गया है, जबकि स्ट्रीट क्राइम, हाउस शॉप और रॉबरी और नकब जनी के मुकदमात में मुलविस
96 गैंग्स के जो है वो 145 मुलजमान को गिरफ्तार किया गया। एसपी इन्वेस्टिगेशन मॉडल टाउन का कहना था कि कत्ल और इक़दाम कत्ल 10 मुकदमात में मतलब 27 मुलजमान को गिरफ्तार किया गया है। और इसी तरह से रेप के 7 मुलजमान में मुलव्वस 3 मुलजमान को गिरफ्तार करके जेल भिजवाया गया, जबकि 94 मुलजमान को जो है वो बेगुनाह किया गया है। अगर अगवा की बात करें तो एसपी का कहना था कि अगवा के 109 मुकदमात में 109 मगवियान को जो है वो बरामद करके जो है वो पेश किया गया कोर्ट में। और इसी तरह से 158 इश्तिहारी मुलजमान और 102 अदालती मफरूरानों ने 16 रिकॉर्ड याफ्ता जो है वो मुलजमान गिरफ्तार किए गए। मुलजमान को जो है वो मजबूत प्रोसिक्यूशन की मदद से एसपी का कहना था कि सख्त सजाएं भी दिलवाई जाएंगी। इसी तरह से शहरियों के जानो माल की हिफाजत के लिए एसपी का कहना था कि पुलिस की अवलीन तरजीह है कि ज्यादा से ज्यादा जो है वो इश्तिहारी मुलजमान गिरफ्तार किए जाएं। आज अपने दफ्तर में जो है वो मीडिया के नुमाइंदों से गुफ्तगू करते हुए तमाम मुलजमान को जो है वो पेश किया गया, जिसमें जो है वो गार्डन टाउन था, इसके अलावा मार्केट और फोर्ट लखपत और दीगर थानों में जो है वो मुलजमान जो गिरफ्तार किए गए थे उनको जो है वो एसपी के सामने और मीडिया के सामने पेश किया गया। जिस तरह से बात की जाए गालम मार्केट पुलिस स्टेशन की, तो इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन गालम मार्केट ने जो है वो 4 ऐसे मुलजमान गिरफ्तार किए जो डकैती की वारदात करके जा रहे थे। वसीम साबिर, आपका बेहद शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। कॉमनवेल्थ गेम्स के गोल्ड मेडलिस्ट नूह दस्तगीर भट्ट को पाकिस्तान कस्टम हाउस ने एजाज़ी ओहदा असिस्टेंट कलेक्टर से नवाज दिया। बतौर मेहमान खुसूसी पाकिस्तान कस्टम के रिटायर्ड ऑफिसर शाहिद रहीम और मौजूदा ऑफिसर मुकरम जान ने स्टार लगाकर एहसास बख्शा। मज़ीद जानते हैं उमर हयात चौधरी से, जो कि इस वक्त कस्टम हाउस में मौजूद हैं। जी उमर, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ कस्टम हाउस में, जहाँ पर गोल्ड मेडलिस्ट नूह दस्तगीर भट्ट साहब यहाँ पर शामिल हो चुके हैं, इस कस्टम हाउस का हिस्सा बन चुके हैं। जी नूह भट्ट साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं कस्टम में, और ये बताइएगा कि आप जिस क्लब में से हिस्सा ले रहे थे और उसके बाद कॉमनवेल्थ में आपने पार्टिसिपेट किया, आपके क्लब के जो कलीग्स हैं उनका नाम लेकर, और क्या आप अकेडमीज़ बनाकर उनको जो आपकी स्पेशलिस्ट हैं नीचे तकवीत देने के लिए, उनको सपोर्ट करने के लिए, क्या आप उसके लिए क्या इक़दाम करेंगे? देखिए, हमारे पास ऐसी कोई अकेडमी नहीं है। हमारी अपने घर के अंदर एक कमरा है जहाँ पे हम ट्रेनिंग करते हैं, दोनों भाई, हमारे वालिद साहब हमें वहाँ पे ट्रेनिंग करवाते हैं। तो हमारे पास ऐसी कोई गवर्नमेंट की तरफ से अकेडमी नहीं है कि जहाँ पे हम जाके मतलब ट्रेनिंग करते रहें या मज़ीद जो लड़कों को हम करवाते रहें। तो हमारी अपनी जिम है, हम दोनों भाई वहाँ पे करते हैं, और हुकूमत की तरफ से अभी इस तरह की कोई अकेडमी नहीं मुझे मिली कि मैं जहाँ पे जाऊँ और मज़ीद जो लड़के हैं आए उनको वहाँ पे ट्रेनिंग करवा सकूँ। क्या पाकिस्तान कस्टम से अपील करेंगे कि आप इस अकेडमी को बनाने में हमारी सपोर्ट करें, जैसे कि उन्होंने सपोर्ट का ऐलान किया है? देखें, ये काम गवर्नमेंट का है। कस्टम जो पाकिस्तान कस्टम है वो जो कर रही है वो बहुत है मेरे लिए। एटलीस्ट मुझे वो वेट इक्विपमेंट उन्होंने कहा कि प्रोवाइड करेंगे, तो मेरे लिए इनफ है कि मैं अभी जो है तैयारी के लिए मेरे लिए इतना काफ़ी है। और जो बात जगह की है, मेरा नहीं ख्याल कि अभी मैं इस लायक हुआ हूँ अभी कि मैं एक जगह अकेडमी खोल के खुद कोच वहाँ पे लग जाऊँ। अभी मेरा खुद पीरियड चल रहा है सीखने का, मैं खुद इसमें सीख रहा हूँ, मज़ीद एक्सपीरियंस कर रहा हूँ। तो इंशाल्लाह जब मैं वेट लिफ्टिंग इंशाल्लाह जब छोड़ूंगा तब उसके बाद फिर इस तरह। क्या वज़ीर आज़म से अपील करेंगे आप अकेडमी बनाने की और कोलीग्स और अपने शागिर्द बनाने की? देखिए, मैं अपील नहीं करता क्योंकि यहाँ पे कई खिलाड़ी आके चले गए हैं जिन्होंने अपील की हैं, तो किसी की अपील जो आज तक कबूल नहीं हुई, तो मैं अपील नहीं करता। डिप्टी कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली की ज़ेर सदारत इंसदाद डेंगू मुहिम के हवाले से इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास में मुतल्लिका महकमों के अफसरान ने शिरकत की। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान जारी सरगर्मियों पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। DC लाहौर मोहम्मद अली ने डेंगू सर्विलेंस की रफ्तार को तेज़ करने की हिदायत की। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 783 शहरियों को डेंगू SOPs पर अमल दरामद न करने पर नोटिस जारी किए गए। कमर्शियल इमारतों से डेंगू लार्वा बरामद होने पर 14 अफराद के खिलाफ FIRs का इंदराज किया गया। 5 अफराद को हिरासत में ले लिया गया। 740 मकामात से डेंगू लार्वा तल्फ करवाया गया। पाक फ़िज़ाइया की जानिब से सैलाब मुतासरीन के लिए इमदादी सरगर्मियाँ जारी हैं। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं मोहम्मद साकिब भट्ट की इस रिपोर्ट में। हालिया सैलाब ने खैबर पख्तूनख्वा, सिंध, बलोचिस्तान और जनूबी पंजाब में तबाहकुन सूरत हाल पैदा कर दी है। जरूरत की इस मुश्किल घड़ी में हम वतनों को सहूलत फराहम करने की गर्ज से पाक फ़िज़ाइया का हर फर्द सैलाब मुतासरीन के लिए रिलीफ और बहाली के कामों में पेश है। मुतासरा इलाकों में मौजूदा आलूदा पानी ने वबाई अमराज की सूरत में सैलाब मुतासरीन की मुश्किलात को मजीद बढ़ा दिया है। पाक फ़िज़ाइया ने सैलाब से मुतासरा इलाकों में डेंगू, मलेरिया, डायरिया, हैजा और पेचिश जैसे मौजी अमराज से निपटने के लिए फौरी तिब्बी इमदाद
इमदाद फराहम करना शुरू कर दी है। पानी से पैदा होने वाली बीमारियों की तेजी से तशखीस के लिए मुख्तलिफ मेडिकल लैब कलेक्शन पॉइंट्स कायम किए गए हैं और कीमती जानों को बचाने के लिए फौरी तिब्बी इमदाद फराहम की जा रही है। पाक फिजाइया के हेलीकॉप्टर और ट्रांसपोर्ट बेड़े ने सैलाब ज़दगान के महफूज इनखला के साथ साथ खुराक और तिब्बी सामान की नकलो हमल भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। गुज़िश्ता चंद 24 घंटों के दौरान पाक फिजाइया ने जरूरतमंद खानदानों में 18,510 पके हुए खाने के पैकेट, 300 पानी की बोतलें और 1,920 बुनियादी गजाई इजनास पर मुश्तमिल राशन पैक तकसीम किए। मजीद बरा मुफ्त खुराक और रिहाइश की और अब बुलेटिन में शामिल करेंगे खेलों की खबरें। पाक इंग्लैंड T20 सीरीज का पहला मैच आज खेला जाएगा। मैच नेशनल स्टेडियम कराची में शाम 7:30 बजे शुरू होगा। इंग्लैंड टीम के कप्तान जोस बटलर इंजरी के बायस मैच में शिरकत नहीं करेंगे। उनकी जगह मोइन अली इंग्लिश टीम की क़यादत करेंगे। पाकिस्तानी कप्तान बाबर आजम भी सीरीज में परफॉर्म करने के लिए तैयार हैं। क्रिकेट शायकीन ग्रीन शर्ट्स की जीत के लिए पुरुमीद। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज़।